My name is Mahendra Kumar Mishra. I am subject teacher of English. I am teaching English grammar for class 12. Now we have to go towards the study of synthesis. First of all, we have to consider what is synthesis. Synthesis means combination of sentences. In synthesis, we have to study three kinds of sentences. First, we have to study simple sentence. Second, complex sentence. And third, compound sentence. Synthesis tenses are combined with the help of the one finite verb is called simple sentence. It means simple sentence has one finite verb. And as I saw running dog, मैंने दौड़ते कूदते को देखा. The sentence which are combined with the help of subordinating conjunctions are called complex sentence. In complex sentence, we have one principal clause and one or more subordinate clause. So, as this boy who came to my house yesterday, यहाँ who से जुड़ा है, तो subordinating conjunction के अंतर्गत सभी इंट्रोगेटिव वर्ब होते हैं. इसके साथ साथ जो है बिकॉज, इन केस, इफ ओनली इत्यादि सब होते हैं. और अब आता है थर्ड नंबर पर कंपाउंड सेंटेंस. द सेंटेंसेस व्हिच आर कंबाइंड विद द हेल्प ऑफ coordinating conjunctions are called compound sentence. Under coordinating conjunction, we have to study as well as and, not only but also either or, neither nor, so otherwise, etc. Now we have to go towards the simple sentence. Here in synthesis, simple sentence are combined for simple sentence, for complex sentence and for compound sentence. In simple sentence, we have to go towards that how we have to combine many simple sentence to one simple sentence which has one finite verb. We take help of various kinds of things such as first is participle. We think what is participle. Participle means a word which does the work of adjective and verb both is called participle. As Sudha saw a beeping child. Here सुधा ने जो है रोते हुए बच्चे को देखा. According to grammar, beeping verb and it is doing the work of adjective as it is qualifying the what is child doing. So here beeping is participle. It has come as a participle of a present participle. There are three kinds of participle. First, present participle. Second, past participle. And third is called perfect participle. First of all, we have good word present participle. Present participle. What is present participle? In present participle, verb first plus ing ing. verb first में ing को जोड़ा जाता है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है. प्रेजेंट पार्टिसिपल जब आप हिंदी में निकालते हैं तो होए या करके होते. जैसे अब कब जोड़ा जाता है, जिस समय हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके जो है सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, जब दोनों कार्य एक साथ होते हैं. व्हेन द बोथ वर्क and our works done at the same time, at that time we use present participle. As I went to my house, I took off my class. मैंने क्या किया, मैं अपने घर गया और मैंने अपने कपड़े उतार दिए. तो कपड़े उतार दिए, पहले मैं अपने घर जाता हूँ. तो घर जाता हूँ तो पहले वेंट को लेंगे, फर्स्ट थाम इसकी लेंगे कि घर जाते हुए मैंने कपड़े उतार दिया. तो ये हो गया आपका सेपरेट.
सेटलिस्ट। इसके लिए लेंगे कंबाइन, कंबाइन मिला हुआ, कंबाइन में लेंगे गोइंग टू होम, गोइंग टू होम। ये काम यहाँ लगता है आई टू का माई क्लास। हाँ, तो इस प्रकार जो है ये हो गया। जैसे इसमें होता है फिर सुधा was hungry. She took her food. सुधा भूखी थी और सुधा ने अपना खाना लिया। तो यानी भूखी है, भूख चल रही है, उससे मैं खाना लिया। तो सुधा was hungry. Here was second form of the verb. As the was where second form and third is being. Being. तो फर्स्ट हाल तो वी हैव टेक शुड पास द वार। तो ऐसा क्या हो जाएगा, बी का क्या लेंगे वो, तो बीइंग, बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री फिर यहाँ कामा लगता है। अब यहाँ सी के स्थान पर हम सुधारें, सुधा, सुधा टुक हर फूड। बीइंग हंग्री सुधा टुक हर फूड, मानी भूख की वजह से सुधा ने क्या लिया, अपना खाना लिया, माने खाना खाया। इसी तरह शी was tired of reading. She was tired of reading. She lay down to take rest. Rest. सी was tired of reading, पढ़ते पढ़ते थक गए। और सी ले डाउन तो एक रेस्ट लेने के लिए लेट गए। तो पहले क्या, हम दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं, थकी भी है इसके साथ साथ रेट भी आती है। तो फर्स्ट क्या हुआ, इसमें बना हुआ है, तो क्या है, बीइंग, इसे लेंगे बीइंग टायर्ड ऑफ, पास्ट पार्टिसिपल बना है, तो कंबाइन बीइंग टायर्ड ऑफ रीडिंग, बीइंग टायर्ड ऑफ रीडिंग, फिर कामा, फिर क्या है, सी ले डाउन। यहाँ क्या हुआ, यहाँ आप लेंगे ही ले डाउन या सी ले, हाँ क्या हुआ, कौन सुना है ना, तो सी वाज टायर्ड ऑफ रीडिंग, से ले डाउन टू टेक रेस्ट। तो बीइंग टायर्ड ऑफ रीडिंग, अब यहाँ क्या ले लेंगे, सी, सी टायर्ड, सी ले डाउन, सी ले डाउन, हाँ सी ले डाउन टू टेक रेस्ट। ये हो गया। तो इस प्रकार सिंपल सेंटेंस हम बनाते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल के द्वारा, जो दोनों का साथ साथ होते हैं, तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके वाक्यों को जोड़ते हैं। यहाँ दो तीन क्रियाएं होती हैं और हम सिंपल बना देते हैं। जैसे फिर है, जैसे हाँ, ही वर्क अच्छा, ही वाज वर्किंग, he was working, he was laughing, he does spend his life। क्या बताया गया, ही वाज वर्किंग, वो काम कर रहा था, वह हंस रहा था, इस प्रकार अपने जीवन व्यतीत कर रहा था। तीन क्रियाएं इसमें हमें एक कर लेना है। तो क्या करेंगे, दो काम सारे किसे दे देंगे, वर्किंग एंड लाफिंग, कंबाइन बनाते हैं, तो वर्किंग एंड लाफिंग, वर्किंग एंड लाफिंग। अब यहाँ इसका कामा लगेगा, ही डस स्पेंड ये लाइफ, ही डस स्पेंड हिज लाइफ। हाँ, तो तीन वाक्य जोड़े गए हैं, जैसे और ये दूसरा, जैसे आगे है, आई वेंट टू माई होम, आई सा, आई, हाँ, आई सा माई
मदर, मदर, आई टच्ड हर। मैं जो घर गया, मैंने अपनी माँ को देखा, अब मैं जो उनके पैर छुए, तो तीसरी बात में पहले क्या है when, फिर है अब थर्ड है टच, मैंने पैर छुआ। तो उसे कैसे बनाएंगे, तो जो देखेंगे, पहले घर जाते हैं गोइंग, गोइंग टू माई हाउस, गोइंग टू माई होम, एंड जोड़ देंगे, एंड सीइंग, सीइंग माई मदर, मदर, फिर यहाँ कहाँ लग जाएगा, आई टच, आई टच हर, आई टच है। फिर प्रकार ये हो गया गोइंग टू माई होम एंड सीइंग माई मदर, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया। और जो आई टच जो हर भी क्या तो फाइनल है। इस प्रकार आपका सेंटेंस बन जाता है। Here we see that the work is done by the subject। एक एडजेक्टिव काम करता था, लेकिन जब यहाँ कभी भी ऑब्जेक्ट काम करता है, ऑब्जेक्ट विशेषता बताई जाती है, तो परफेक्ट जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑब्जेक्टिव बाहर रखा जाता है। जैसे आयशा विनोद, he was laughing with his friend। हाँ, तो क्या मैंने विनोद को देखा और क्या कर रहा था, हंस रहा था अपने मित्र के साथ। तो मेरी विशेषता नहीं बल्कि विनोद का हंस रहा था, तो यहाँ विनोद की बात लगाएंगे, कंबाइन बनाएंगे। कंबाइन क्या बनता है, आई सा विनोद, आई सा विनोद, और फिर क्या हो, आई सा विनोद, फिर यहाँ कामा नहीं लगे, लाफिंग विद हिज फ्रेंड। जैसे प्रभा सा हर, प्रभा सा हर बजा, he was abusing his neighbor। प्रभा ने अपने भाई को देखा, वो है अपने पड़ोसी गाली ले रहा था, तो भाई की विशेषता है कि पड़ोसी गाली ले रहा था। तो प्रभा सा हर बजा, बजा है काम नहीं लगता है, एब्यूजिंग in this way we know when the two or more work are performed at the same time, we have to take cooperation of present participle to combine the sentence, and after this we have to go ahead towards participle। problem created that what is participle, in verb form we see that come, came, come, थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट विचार प्रेजेंट ऊपर लिखा रहता है, फॉर्म दूसरा क्या पास्ट लिखा रहता है, तीसरा क्या फ्यूचर लिखा होगा, लेकिन वहाँ कैसा जो है लिखा है पास्ट पार्टिसिपल। तो हर पास्ट पार्टिसिपल इज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड वी टेक अप पास्ट पार्टिसिपल फॉर कंबाइनिंग सिंपल सेंटेंस एज विनोद सा सम fishes, they were colored। विनोद ने विनोद ने मछलियाँ दी, दे वर कलर रंगीन थी। तो कैसे रंगीन विशेषता बता रहा है किसकी, सम फिशेज। और यहाँ अलग कलर जो है वर्ब भी है, और कहे काम कर एडजेक्टिव का, तो दिस इज आल्सो पार्टिसिपल, बट व्हाई इट इज इन थर्ड फॉर्म वी हैव टू नो इट आएगा पास्ट पार्टिसिपल। तो बनेगा विनोद सा सम कलर्ड फिशेज। विनोद ने कुछ कलर्ड फिशेज देखा। अब फिशेज का फिशेज रंगीन मछलियाँ हो तो होता है, अलग अलग वर्णन होता है, लेकिन फिश का फिश कहाँ रहता है, जैसे बी दसी है बाउंस विद फिश, मैंने जो है समुद्र मछलियों से भरा है, तो जहाँ सामूहिक रूप से होता है वहाँ फिश का फिशेज होता है। जैसे
सुधा met her teacher. He was busy writing. Sudha का टीचर he was retired. सुधा ने किसको देखा? अपने टीचर को देखा, हुआ रिटायर्ड से मिली सुधा, तो सुधा यहाँ हो जाएगा सुधा मेट हर, सुधा मेट हर रिटायर्ड टीचर। सुधा जो है विश्वास पाकर जो है सेवानिवृत्त टीचर से मिली, तो है रिटायर्ड थर्ड फॉर्म एंड क्वालिफाइड द टीचर, सो इट इज नॉट पास पार्टी। There are some other examples also. I found my ring. It was lost. मैंने अपनी अंगूठी पाया, खो गई थी, तो लास्ट इज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड इट इज क्वालिफाइड द रिंग। तो मैंने क्या पाया? मैंने कोई अंगूठी पाया, तो यहाँ क्या हो जाएगा? आई फाउंड माई लास्ट रिंग। मैं अपनी खोई हुई अंगूठी पा गया है, इट इज पास पार्टिसिपल एंड इट क्वालिफाइंग द रिंग। अब जैसे देखते हैं ये जब एक शब्द विशेषता बताता है तो उसके पहले रख दिया जाता है, और अगर शायद कई शब्द मिलकर विशेषता बताते हैं तो उसे फ्रेज बोलते हैं, पार्टिसिपियल फ्रेज और पास पार्टिसिपियल फ्रेज। एट दैट स्टेज वी पुट that participial phrase after the word which it qualifies। हम इसके बाद लिखते हैं जिसकी वो विशेषता बताता है, जैसे अजय सा ए डेड बॉडी, इट वाज कवर्ड विद ए व्हाइट। क्या लिखा? अजय ने लाश देखी, ये सफ़ेद कपड़े से ढकी हुई थी। अगर होता जो है अजय साइड डेड बॉडी, इट वाज कवर्ड, तो हो जाता अजय साइड कवर्ड डेड बॉडी, बट हियर इज गिवन विद व्हाइट, तो पूरा फेज बन जाता है। तो क्या बनेगा इसका? अजय सा ए डेड बॉडी कवर्ड विद a white cloth। जो है सुधा ने देखा डेड बॉडी कवर्ड विद व्हाइट क्लॉथ, तो डेड बॉडी की विशेषता बताई जा रही है कि पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है, इसे बाद में करते हैं। वी हैव स्टडीड प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड पास्ट पार्टिसिपल। नाउ वी हैव टू गो अहेड फॉर द परफेक्ट पार्टिसिपल। व्हाट इज परफेक्ट पार्टिसिपल? परफेक्ट पार्टिसिपल थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब विद हाइवेन। तो परफेक्ट पार्टिसिपल तो परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब था। व्हेन वी यूज परफेक्ट पार्टिसिपल, फर्स्ट प्रेजेंट पार्टिसिपल, सेकंड परफेक्ट पार्टिसिपल, थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल। व्हेन वी यूज थर्ड परफेक्ट पार्टिसिपल, व्हेन one work is completed and second work is started after that work, some distance or after some time, so at that stage one work is totally completed, at that stage we have to use perfect participle। जैसे अनीता completed her homework, she went to play। अनीता ने अपना जो क्या किया, होमवर्क समाप्त किया और खेलने चली गई, तो एक कार्य पूरा हो गया, खेलते खेलते करते। When she will complete her work at that stage she will be, तो having completed here, having completed her
work, her homework, her homework. Here we have to work with comma. फिर क्या हो जाएगा? कौन? यहाँ अनीता लेंगे, सीधा लेंगे. फिर क्या होगा? अनीता. अनीता went to play. Went to play. खेलने चले. तो इस प्रकार जो है परफेक्ट पार्टिसिपल होता है. जैसे she brushed her teeth. She 30 सेकंड जब हो जाए went 28 मिनट के बाद 30 सेकंड जब और बना लो attend. जैसे 3 मिनट में तो बता देंगे 2-3-4 मिनट रहेगा तो वो अलग से क्लोज करें. She brushed her teeth. She went to attend the coaching class. There were times at the time. This was a median. She first of all brushed her teeth because she had to go among the student. After this, she तो क्या होगा? पहले दांत साफ करते करते आएगी. जब दांत साफ हो जाएगी तो आएगी तो हो जाएगा having brushed. Having brushed her teeth. Her teeth फिर हो गया. यहाँ सी ना लेकर क्या लेंगे फिर? हाँ सी अगर नाम हो तो यहाँ नाम लेते पर सी है तो सी went to attend coaching class. So this is perfect participle. Perfect participle is used as a passive form also. At that stage we have used word being after having. As she was punished by her teacher. She felt sorry. She was punished by her teacher. अपने टीचर का दंडित हुई. She felt sorry. उसे दुख का अनुभव हुआ. तो first of all she got completed after some time. She thought that I could not do my work. So she was regretting herself. This was the main reason after that time she felt sorry. So you have to use this passive form. So we have to use having been punished by her teacher. She felt sorry. In this way we have read present participle, past participle and perfect participle. And second rule, how we have to take help of which rules in which we can make simple sentence, because simple sentence will have only one finite verb. So second rule is infinitive, using infinitive. Using infinitive. What is infinitive? Infinitive is a first form of verb, but before this verb, to is added. To is put before that verb. It comes as a subject and object both. As she likes to swim. वह क्या पसंद करती है? I like to swim तैरना. I like to swim तैरना पसंद करता हूँ. तो लाइक के साथ टू स्विम तैरना एक क्रिया है, इसका टू आ रहा है. इसकी एक विशेषता होती है कि अंत में हिंदी में अर्थ निकालोगे तो नाने नहीं आता है. जैसे कभी टू वाट इज ए गुड एक्सरसाइज और मानी क्या है? टहलना एक अच्छा व्यायाम है वृद्धों. तो टहलना एक अच्छा व्यायाम वृद्धों के लिए. तो यहाँ जो है टू आट आया है किस रूप में? सब्जेक्ट रूप में आया है, जो कि इंफिनिटिव है. वो आट के पहले टू लगा है. जैसे टू एयर इज मानी गलती का नाम माना होता है. गलती करना है मानव का काम. तो गलती करना मानव टू एयर यहाँ हो गया सब्जेक्ट के रूप में. आप है इंफिनिटिव. अब नाउ वी हैव गो टुवर्ड्स सेंसेस. हाउ वी हैव यूज्ड टू इंफिनिटिव फॉर मेकिंग simple sentence. Here the sentence which shows
द एम, उद्देश्य जिससे जाहिर होता है उसे इन्फिनिटिव बनाया जाता है। जैसे आई बॉट ए पेन, आई वांटेड टू राइट लेटर। यहाँ क्या हुआ, आई बॉट ए पेन, मैंने एक पेन खरीदा, अब मैं पत्र लिखना चाहता था, उद्देश्य पत्र लिखना। समटाइम टू it could be to it found before of the verb, sometime we have to add also. So I bought a pen to write लिखो। मैंने एक पेन खरीदा, उद्देश्य क्या था, पत्र लिखने का। जैसे रमेश was very है सी ही could not run। तो ये जो है, रमेश जो बहुत मोटा था, वह तेजी से नहीं दौड़ सका। तो जहाँ बेरी आया जाता है तो बेरी के साथ टू लगा देते हैं, टी डबल। तो क्या बनाते हैं, रमेश वाज टू रन फास्ट। रमेश बहुत ज़्यादा मोटा था, दौड़ने की वजह से दौड़ नहीं पाया। अब ये यहाँ आते हैं, द क्वेश्चन वाज वेरी difficult Manoj could not solve it। हाँ, तो प्रश्न बहुत जो कठिन था, मनोज सॉल्व नहीं कर सका। तो यहाँ बिल्ली के साथ टू कर देंगे, तो क्या है, द क्वेश्चन वाज too difficult फार मनोज के लिए कठिन है, बाकी के लिए नहीं हो सकता। फार मनोज है, फार मनोज टू सॉल्व। In this way we have to go ahead, that in this way we can complete, we can combine the simple sentence, that's here we have to see जैसे यहाँ किसके लिए कठिन था, मनोज के लिए। तो दूसरे के लिए कठिन नहीं होता। तो क्वेश्चन वाज टू डिफिकल्ट फार मनोज लिखी जाता है, और फिर फार मनोज टू सॉल्व। इस प्रकार आ जाता है, क्वेश्चन वाज टू डिफिकल्ट सी कुड नॉट सॉल्व, वो ही सॉल्व कर सकते। टू डिफिकल्ट फार हार्ड टू सॉल्व। इस प्रकार आपका सेंटेंस के दो रूल हो गए। पार्टिसिपल इन्फिनिटिव के माध्यम से हम सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।